آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز بلوچستان میں مختلف کارروائیوں میں 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں 15 جوان اور 18 شہری شہید ہوئے۔ 2 روز میں مارے گئے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فتنہ الہندوستان نے اسپانسرڈ دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں نے 31 جنوری کو بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گرد کارروائیاں کی۔ ان شہروں میں کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبدین، خاران میں کارروائیاں کی گئیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے۔ جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، مزید کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کی؟ سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور مزدوروں سمیت 18 بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ تاہم سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری رد عمل دیتے ہوئے طویل، شدید اور جرات مندانہ کلیئرنس آپریشنز کے دوران 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے اور علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران 15 بہادر جوان دلیری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ ان شہداء کا تعلق مختلف یونٹس سے تھا جنہوں نے شہریوں اور اہم تنصیبات کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق تصدیق کی ہے کہ یہ حملے پاکستان سے باہر بیٹھے دہشت گرد سرغناؤں کی ہدایت پر کیے گئے، جو کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں سے براہ راست رابطے میں تھے۔ اس سے قبل 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جس کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں مارے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے، جبکہ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور معاونین کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام کے ویژن کے مطابق غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے وقار۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ کوئٹہ میں ہفتے کو پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس، دیگر حکام اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی میتیں گھروں اور آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ریاست اور عوام کا عزم غیر متزلزل ہے اور ہمارے بہادر شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ یہ بات انہوں نے کوئٹہ میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت اور پولیس لائن میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور شہداء کے لواحقین سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہمارے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کا جرأت اور عزم کے ساتھ مقابلہ کیا اور ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کے لواحقین سے وعدہ کیا کہ خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ ورثہ حوصلے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز اور عوام کی بہادری کو سراہا اور کہا کہ ہمارے جوانوں نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ہفتے کے حملے کے لیے جو بھی دہشت گرد آیا وہ بچ کر نہیں جا سکا۔ حملوں میں ملوث کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے۔ بھارت نے بلوچستان میں حملوں کا منصوبہ بنایا۔ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ہم انہیں بے نقاب کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارے جوانوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا ہے، اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے مارا ہے تاکہ وہ بچ کے نہ جا سکے۔ میں سب سے زیادہ اس میں جو سب سے بہادر شخص ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کر رہے ہیں، اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طریقے سے اور جس جذبے کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے پاس چند ایک اور سرفراز بگٹی ہوتے تو اس ملک کی دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی۔ یہ دہشت گرد نارمل دہشت گرد نہیں ہے۔ انڈیا از بیہائنڈ دوز اٹیکس۔ I can tell you
for sure that India planned these attacks along with these terrorists. और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे, जिस तरह सीएम साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है, और वो जितना मर्जी कर ले उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर, चाहे वो फेडरेशन है, चाहे वो प्रोविंस है, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी हमारा आज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शोहदा के ख़ानदानों के हौसले बुलंद हैं। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी ख़वातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मज़म्मत करता हूं, और साथ साथ जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, देखिए हैरोफ जिसको सो कॉल ये हैरोफ 1 और हैरोफ 2 का नाम देते हैं, मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी एफसी ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का, इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। और मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला इस फितने को, हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, हमारी पुलिस हो। हम बहुत हाई स्पिरिट्स में, अभी हम ज़ख्मियों से मिल के आए हैं, जो उनका स्पिरिट मैंने देखा है, शोहदा की फैमिली से मिल के आए हैं, उनका जो मैंने स्पिरिट देखा है, इस मुल्क का कोई बाल बिका भी नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। फितनाइल हिंदुस्तान ने अपनी कार्रवाइयों में मासूम बलोच शहरियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गवादर की लेबर कॉलोनी में दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी बलोच शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों के सामने कुरान और बच्चों का वास्ता दिया गया, मगर उन्होंने एक ना सुनी। हमारा बीबी था, वो बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया, हम उधर सोची कि ये दस्ते भी लग गया और पैसे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तुम ऐसे मार रहे हो, क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो फौत हो गया। मार को गरीब मोका तूस कना मसड़स पे दस को गरीब मोड़े इत्साते ने ना कम मलेटी कना दे तक भाई ऐसा करे रही तेरे बेचकार करे तेरे पदम पारट पे वसी लफ कुरान ने पे गुड़ा हिना दिक्कत सा कुरान ने पे मसड़ का कुरान ने दे कुरान ने ता पे कुरान हो बाजी दा कुरान ना रोई नो ना कुम कना मसड़ू ना सालू ना खुली नार करे। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, पहुंचने के साथ वहाँ पे फायरिंग का आवाज़ सुना, हम लोग साइड पे हो गए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे कोने पे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोग। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शाहिद रिंद का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिप्टी कमिश्नर मस्तूम को दहशतगर्दों से बाजियाब करा लिया है। उनकी वापसी की इतलात मिल रही हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अभी तक जारी है। कलदम दहशतगर्द सड़कों पर निकलकर वीडियोस बनाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के आने पर भागकर छुप जाते हैं। तरह की भी कुछ इतलात थी कि जो एसी और डीसी नौशकी के हैं उनको अगवा किया गया, मुबैना कुछ उनके वीडियोस भी चल रहे हैं। लेकिन डीसी मस्तूम के हवाले से इब्तदा में एक वीडियो सरफेस हुई थी, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ डीसी मस्तूम उनके जो है जिसे कहते हैं वहां से निकलने में कामयाब हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें वहां से रिकवर करने की में कामयाब हो चुकी हैं। इस वक्त उनके वेयर अबाउट्स क्या है मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन वहां से उनके निकलने की इतलात हमें मौसूल हुई है। लेकिन इसको मजीद मैं तस्दीक कर रहा हूँ क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है। जब तक कोई
कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाती मैं उसे कंफर्मली नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कहां पर। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर गुज़िश्ता चंद महीनों से हम ये देखते हैं कि ये कुछ अरसे के लिए आते हैं जहां पर कंट्रोल लेते हैं, उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती हैं तो वो ये वहां खड़े नहीं होते, उसके बाद ये वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ देर के लिए जरूर सोशल मीडिया पे एक तासुर बनाने के लिए कि उनका कंट्रोल है किसी इलाके पर, वो जरूर एक तासुर कायम करते हैं, लेकिन रियलिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनाम ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि ये कौमी वक़ार बैनुल-अक़वामी साख का मामला है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाब देना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा है कि मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमेरिका के सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा भी किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरे इसराइल के 3 रोज़ के बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे, मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा, इसका क्या मतलब है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान किया गया है। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। डीजल की नई कीमत का इतलाक आज यानी 1 फरवरी से हो चुका है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरगे ने मुतालबा किया है कि वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, मुस्तकबिल में पायदार अमन की वाज़ेह ज़मानत दी जाए, सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। जरगे ने तीरा में बद इंतज़ामी और मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन पर सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबायली माहिदीन और मशरान के मुतालबे पर तलब जरगे ने सूबाई हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहेअमल तय किया। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जरगे ने तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान किया। मुतालबा किया कि तीरा मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाई जाए, मुआहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम और नाफिज किए जाएँ, तीरा मुतासरीन की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन की जाए, सबको इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। सियासी इत्तेहाद ने कहा कि अमन व अमान से मुतालिक सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने वादी तीरा पर जो बयानिया बनाया उस पर वो कौम से माफ़ी मांगे। केपी हुकूमत ने तीरा के आवाम की रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया। 4 अरब रुपए लोगों की मदद के लिए रखे गए मगर इसका कोई हिसाब नहीं। तीरा के आवाम ने आज पाक फ़ौज पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो बयानिया बना रही थी वो सारा झूठ साबित हुआ। लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। जो फोर्सेस वहाँ अमन कायम करने गईं उन्हीं पर बहतान तराशी की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज के जरगे के बाद माफ़ी मांगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो वज़ीर आला हैं लेकिन उन्हें भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खबर उनके ख़ानदान से भी छुपाई गई। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज़ जनाजा आज मीरपुर में अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। उनके इंतकाल पर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। उनकी सियासी ज़िंदगी पर जियो न्यूज़ आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे आरिफ उर्फ़ी की रिपोर्ट देखिए। यकीनन हमने उस पार को भी आज़ाद कराना है जो कि दुश्मन के
कब्जे में है और वहाँ पे भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा और अवामी रहनुमा चौधरी नूर हुसैन के फर्जंद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 1955 में मीरपुर में पैदा हुए। गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से तालीम हासिल की। लिंकन जिन बरतानिया से बार इतला किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरबराही से किया। 1985 और 1990 की असम्बली में भरपूर अवामी नुमाइंदगी के बाद अपनी जमात आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को KH खुर्शीद की लिबरेशन लीग में जम करके लिबरेशन लीग के सदर बन गए। सुल्तान महमूद चौधरी दुनिया भर में तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपना मुनफरिद मकाम रखने के साथ साथ रियासती सियासत में भी नुमाया सियासी कद काठ के मालिक थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी में जब शमूलियत अख्तियार की तो पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से 1996 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके आज़ाद कश्मीर के 5वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2001 में वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। 2005 में उन्होंने पीपल्स मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात बनाकर इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल की और ताकतवर हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा किया। 2016 के इंतखाबात में PTI के सदर की हैसियत से हिस्सा लिया और जिंदगी में पहली बार शिकस्त का सामना किया। बाद में 2019 के ज़िमनी इंतखाब में असम्बली के मेंबर बने। 2021 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ मुंतखब होकर असम्बली पहुंचने वाले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी असम्बली से भी भारी अक्सरियत के साथ आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। दौरान सदारत वो अलालत का सामना करते रहे। कई मरतबा बैरून मुल्क भी उनका इलाज मालिया जारी रहा, ताहम वो सेहतयाब न हो सके। तवील अलालत के बाद निजी हस्पताल में खालिक की हकीकी सजा मिले। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेस्टोरी की सनह गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद के घर दिल्ली कॉलोनी आमद मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी और हर मुमकिन ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर भी अफसोस का इजहार किया। खेलों की दुनिया से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। कराची में रिहायशी या कमर्शियल प्लॉट्स पर तामीरात के लिए कानून भी मौजूद है और इस पर अमल कराने वाले इदारे भी, लेकिन बेलगाम करप्शन के बायस रियल एस्टेट का शोबा तामीरात से ज़्यादा तखरीब का सबब बना हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व। पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। यानी साफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। क्या रियल एस्टेट का शोबा स्टेट को खा रहा है? ये सवाल है तो मुतनाज़े, लेकिन कराची में रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात का जायजा लें तो अंदाजा होता है कि जो खतीर रेवेन्यू कौमी खजाने में जाना चाहिए वो करप्शन माफिया की जेबों में चला जाता है। 250 गज से लेकर 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट्स की मुकम्मल मंजूरी मुबैना दौर पर 2 करोड़ रुपए से 8 करोड़ की रिश्वत की एवज होती है, जबकि तामीरात के दौरान मुबैना तौर पर मुतल्लिका प्लॉट की मंथली रिश्वत 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक बिल्डर की जानिब से अदा की जाती है। बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व है। ये पोर्शन बनाने का रास्ता बिल्डर को देते हैं। वो कैसे देते हैं? अब एक रिहायशी मकान बनेगा, उसके अंदर कंपाउंडेबल वायलेशन जो होगी उसके इनको मिलेंगे 50,000 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पर अनकंपाउंडेबल वायलेशन होगी, जिसको पोर्शन कहते हैं, जो 100% COs को कवर करके बनाए जाते हैं, चाहे वो 200 गज का प्लॉट हो, चाहे 120 गज का प्लॉट हो, चाहे वो 400 गज हो, चाहे वो 800 हो, 1000 हो, चाहे वो 2000 हो। रिहायशी प्लाटों को जब 100% वायलेशन कर देते हैं तो उसके अंदर वो COs कवर कर देते हैं, जिसको कंपलसरी ओपन स्पेस कहते हैं। उसको कवर करने का और रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने का फिर पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। दूसरी जानिब रिहायशी प्लॉट पर मकान बनाने का तरीक़ाकार बहुत आसान है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानून के मुताबिक रिहायशी प्लॉट अगर 399 गज या इससे कम है तो इस पर ग्राउंड प्लस 2 तक की तामीरात करने की इजाज़त है। फर्क सिर्फ ये है कि 2 मंजिल के लिए बेटरमेंट चार्जेस की सूरत में अदायगी करनी होती है।
मकान की तामीर अगर कानूनी तौर पर की जाए तो मुबैना रिश्वत हजारों में ही जाती है, लेकिन रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी पोर्शन तामीर करने हो तो इसका तरीका जरा फनकाराना है। यानी पोर्शन माफिया रिहायशी प्लॉट पर नक्शा तो मकान ही का मंजूर कराती है, मगर रिश्वत देने के बाद जिस रिहायशी प्लॉट पर एक रिहायशी यूनिट बनना चाहिए वहाँ कहीं 6 तो कहीं 8 पोर्शन बना लिए जाते हैं। 200 गज 240 गज के प्लॉट के ऊपर अगर पोर्शन बन रहे हैं, अगर तो वो एक फ्लोर पे एक पोर्शन है तो एक फ्लोर की जो रिश्वत पर फ्लोर एचबीसीए कम से कम उससे 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करेगा। और यही अगर एचबीसीए मल्टी यूनिट बन रहा है 200 गज पे 100 गज के 2 फ्लैट्स बन रहे हैं तो वही रिश्वत एचबीसीए 25 से 30 लाख रुपए लेगा बिल्डर से। आज से तकरीबन कुछ अरसा कबल नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर एक 400 गज के ऊपर सेकंड फ्लोर बनाया गया था। पोर्शन के ऊपर ग्राउंड प्लस 1 पोर्शन बने हुए थे, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाया गया था। तो उसकी जो रिश्वत गई थी वो 30 लाख रुपए सिर्फ सेकंड फ्लोर की तामीर की गई थी। किसी भी इमारत की तामीर के दौरान एक जाने मुबैना तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तो रिश्वत तलब करते ही हैं, लेकिन इस गंदे धंधे में मुबैना तौर पर केडीए और केएमसी इदारों के अफसरान भी मुलव्विस हैं। इसके अलावा जाली सहाफ़ी और बाज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ब्लैक मेलिंग का सहारा लेकर रिश्वत लेते हैं। जाली सहाफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फील्ड के अंदर, ना उनके अखबार रजिस्टर्ड होते हैं,